So students, now we are here with another topic, and this topic is hydrogen bonding. Various types of bondings we are discussing, various types of bondings we discussed with you, and many videos were shared with you. Now this is the another topic which I am going to talk with you, hydrogen bonding. Why it is named as hydrogen bonding? Because this bonding does not takes place without hydrogen. Means hydrogen bonding involves hydrogen. Hydrogen bonding always involve one of the two atoms as hydrogen. That's why this is termed as hydrogen bonding. And secondly, in which molecules we have to observe this hydrogen bonding? So there is also the specificity. It is also highly specific that we observe this kind of hydrogen bonding only and only the molecules in which hydrogen is bonded to any of the three highly electronegative atoms. And the three most electronegative atoms are fluorine, oxygen, nitrogen. So whenever hydrogen is bonded to any one of these three atoms, we observe a special kind of bonding called hydrogen bonding. You see the example. If you notice this HF molecule, a normal molecule, where between hydrogen and fluorine you find a normal covalent bond. I can write it here. This is a case of a normal covalent bond. Covalent bond कैसे बनता है? By sharing of electrons. Means ये जो bond बना एक बहुत normal bond है. It is formed by covalent bond. बना, done. This is another molecule HF. It is also having between hydrogen and fluorine we find the covalent bond. But there is you can say kind of another bonding that this hydrogen in this molecule it is bonded with fluorine, then this hydrogen also attracted by fluorine, which is a highly electronegative atom of another molecule, and this fluorine and this hydrogen of two different molecules get bonded together. This bonding is called as hydrogen bond. I repeat, hydrogen of one molecule is attracted by the electronegative atom of another molecule and they got bonded by a kind of bond called hydrogen bond. Same is written. It is the attractive forces. It is the attractive forces or force which binds the hydrogen atom of one molecule with electronegative atom of another molecule. लेकिन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा किसी और मॉलिक्यूल का, ये सिर्फ और सिर्फ या तो फ्लोरीन होना चाहिए या ऑक्सीजन होना चाहिए या नाइट्रोजन होना चाहिए, बिकॉज दीज आर द थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इसके अलावा किसी और केस में हमें हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्जर्व नहीं होता. रिमेंबर, you just see this example. This is one water molecule, this is another water molecule. Now this hydrogen with this oxygen bonded by covalent bond, but this hydrogen is bonded to oxygen of another molecule by hydrogen bonds. Same in ammonia, this hydrogen is bonded to nitrogen with normal covalent bond, but this hydrogen bond to nitrogen of another molecule by hydrogen. I repeat, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से बॉन्ड कर रहा है कोवलेंट बॉन्ड से, लेकिन इस नाइट्रोजन से बॉन्ड कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड से. आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर. तो जब आपसे हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा जाएगा आप बोलेंगे सर इट इज ए काइंड ऑफ बॉन्ड when hydrogen is bonded to a most electronegative atom of another molecule. आप पूछेंगे सर ऐसा हो क्यों रहा है? सिंपल सा लॉजिक है. इसका रीजन यहां पर ये है, मैं इसका एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं. ये HF मॉलिक्यूल है,
अब ये तो आप मान रहे हो ना कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आई मस्ट से कि जितने एलिमेंट्स मालूम है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है। तो सिचुएशन क्या बनती है, आप पढ़ते हो कि जब दो डिफरेंट एटम्स के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी शिफ्टेड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मींस ये अगर HF मॉलिक्यूल है, इसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन। सो व्हाट द चार्ज ऑफ फ्लोरीन विल बी? गुड, स्लाइट नेगेटिव, and hydrogen will be slight positive. ये polar molecule बना। What kind of molecule? Polar. Similarly, अब जितने भी HF molecules होंगे सब में यही situations आएंगी। Electron pair is more shifted towards fluorine, so fluorine will get slight negative, hydrogen will get slight positive. अब खुद सोचो यार कि ये बॉन्ड भी पोलर हो गया, ये बॉन्ड भी पोलर हो गया, इस हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव और इसके नियर फ्लोरीन पे स्लाइट नेगेटिव, तो दिस हाइड्रोजन विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट टुवर्ड्स फ्लोरीन और एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इफ एनीबॉडी आस्क कि व्हाई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सिंपल आंसर कि बिकॉज़ दीस मॉलिक्यूल्स आर पोलर। आप कहेंगे पोलर तो और भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन यहां जितना ज्यादा पोलैरिटी यहां आती है कि वो उधर भी अट्रैक्ट हो जाए, बाकी मॉलिक्यूल्स में नहीं आती। HCl भी पोलर होगा, नो डाउट, HCl भी पोलर होगा और Cl पर भी स्लाइट नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये HCl भी स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, लेकिन दे आर मोर पोलर, दे आर सो मच पोलर, हाइड्रोजन गेट अट्रैक्टेड बाय अनदर फ्लोरीन। ये चार्ज मालूम है आपको, यहां नेगेटिव चार्ज भी बहुत डेवलप होगा, तो पॉजिटिव चार्ज भी उतने अमाउंट में बहुत डेवलप होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। पोलर ये भी बना, बट नॉट दैट मच पोलर कि हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट। दैट्स व्हाई पोलर तो बहुत सारे बनते हैं, हाइड्रोजन और भी मॉलिक्यूल्स में कनेक्ट होता है, लेकिन हर जगह पोलैरिटी इतना हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, नहीं पॉसिबल। इसका मतलब वेरी क्लियर कि इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बट नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्ड a kind of attractive forces, a kind of electrostatic forces, but फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड की जस्ट 1/10 होती है। मींस वही हाइड्रोजन इधर फ्लोरीन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए है, वही हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए है, but this hydrogen bond is just 1/10 strong as covalent bond. अगर एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इफ वी नीड 400 किलो जूल ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, वी नीड मैक्सिमम ऑफ 40 किलो जूल ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई व्हाट डू वी से, हाइड्रोजन बॉन्ड इज जस्ट 1/10 strong as the covalent bond strong is. This is a general criteria about the hydrogen bond formation which I discussed with you. कब बनेगा ये क्लियर हो गया, कॉज क्या होगा ये भी क्लियर हो गया, वही हाइड्रोजन कोवेलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बना रहा है, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में भी पता लग गया। लेकिन नो डाउट जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड। आप देखो यहां भी मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए, कंबाइन हो गए, नहीं हो गए, they got associated, they got combined। जैसे यहां एक और एग्जांपल दिया, एसिटिक एसिड, this is one acetic acid molecule, you check it now, this is one acetic acid molecule and this is another acetic acid molecule, they got dimerized, they formed their dimer, इन्होंने अपना डाइमर फॉर्म कर दिया, एसोसिएटेड, ये भी एसोसिएशन, this is also association। और जब मॉलिक्यूल्स विल गेट एसोसिएटेड तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, फिजिकल स्टेट पे फर्क पड़ेगा। उसी ग्रुप में ऑक्सीजन से H2O बनता है, H2O लिक्विड हो जाता है, उसी ग्रुप में सल्फर से H2S बनता है, वो गैस के फॉर्म में रहता है।
तो फर्क आपके पास आ जाएगा। नो यू जस्ट लिसन केयरफुली, फर्क आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज H2O। तो पहली बात, ये अपने आप में एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करेगा, फिजिकल स्टेट मैंने आपसे बताया। और खुद सोचो भाई, जब ये ज्यादा एसोसिएटेड होंगे तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, दे विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट्स आल्सो। खुद सोचिए, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बना, तो उनको ब्रेक करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। सो देन ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इट विल बी मोर। इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन कि हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द, हाउ इट इफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट डालता है। सॉल्युबिलिटी आती है, एसोसिएशन आपको समझ में आया, इफेक्ट ऑन फिजिकल स्टेट आपको समझ में आया, और क्या समझ में आया, सॉल्युबिलिटी आपको समझ में आया। सॉल्युबिलिटी क्या, देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स व्हिच विल बी soluble in water because of formation of hydrogen bonds only. There are certain like alcohol, you just see now, कोई सा आप alcohol का एग्जांपल ले लीजिए, like आपने इस alcohol का एग्जांपल लिया, you have C2H5OH जो बड़ा कॉमन सा alcohol माना जाता है। This alcohol C2H5OH, this is water. Now this water and alcohol get associated by hydrogen bonds. इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। That's why what we will say? We will say that alcohol will be soluble in water. Alcohol water में dissolve हो जाएगा, alcohol पानी में dissolve हो जाएगा। This is called solubility. Alcohol will be soluble in water. Alcohol water में dissolve हो जाएगा। तो पहला क्या हुआ, एसोसिएशन, ये आपको समझ में आया। दूसरा क्या हुआ, फिजिकल स्टेट, लिक्विड, उसी ग्रुप में ये सल्फर था, is that it's H2S, it exists in gas because of no hydrogen bond, ये H2 बना, it exists as liquid because of formation of hydrogen bond। और अगर हम इसमें बात करते हैं, ये soluble होगा, और जब ये associated होंगे, so it's but natural, they will have high melting and boiling point as well। इसी तरीके से इनकी वोलेटाइल नेचर में भी फर्क पड़ेगा। ये इफेक्ट है कि जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऑब्जर्व करते हैं, सो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज में कैसे चेंज आता है। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज इन्फ्लुएंस ऑफ और इन्फ्लुएंस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने से मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में, प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है। ये बॉइलिंग पॉइंट का तो इफेक्ट है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा हुआ कि इट एक्सिस्ट इन लिक्विड स्टेट, H2S रिमेन्स इन द गैसियस स्टेट। ये इसी का फर्क आपके पास आया। अब व्हाट नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करता हूं, दिस इज द लास्ट टॉपिक व्हिच आई एम टेकिंग, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स विद अस। तो हम क्या नोटिस करते हैं, टाइप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं। सो वी फाइंड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमें 2 तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आती है। एंड व्हेन वी से वी फाइंड 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर, now what does it mean? Intermolecular, break the word, between molecules. When you say intermolecular hydrogen bonding, it means that bonds between molecules, between different molecules, formed between 2 molecules which are of same or different substances. लेकिन 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल होंगे। एक अगर HF, ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये भी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो सब्सटेंस भी अलग-अलग है, तो हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मींस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। और इस तरीके से क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा मींस विद इन द सेम मॉलिक्यूल। हमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल चाहिए ही नहीं वहां पर, वी नीड ओनली वन मॉलिक्यूल। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर, formed between the hydrogen atom and electronegative atom in the same molecule. You check it, ये एक इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल।
इसमें नाइट्रो भी है, OH भी है, दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट पोजीशंस पर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आएगा तो हम इसकी और डिटेल करेंगे, बट दिस इज नोन एज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। हम इसको ओ नाइट्रोफिनॉल मान करके चलते हैं। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन उसी, देखिए क्या है, उसी मॉलिक्यूल में OH है, उसी मॉलिक्यूल में NO2 है। हाइड्रोजन एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मिला, भले डिफरेंट है, ग्रुप डिफरेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो उसके सामने आया ना। तो दिस हाइड्रोजन फॉर्म्स विद वन ऑक्सीजन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड एंड विद अनदर ऑक्सीजन इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सिंस ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल को इन्वॉल्व कर रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, दो डिफरेंट, ये सब्सटेंस सेम है, ये सब्सटेंस से अलग अलग है, तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच में आएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर, और जब एक ही मॉलिक्यूल में मिलेगा सो दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Many more things are there, but I just discussed the important facts about the hydrogen bonding. This is all about the hydrogen bonding, but I just told much more detail is there, but as far as your standard 11th class is concerned, this is enough. So see it again and learn it. Thank you.